Read-only memory, ROM. The main features are they are non-volatile permanent memory. They store the information of startup instructions when the computer is first switch on. और उसके लिए जो बेसिकली हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर है जो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो है बायोस. बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जो आपके पास F2 प्रेस करने में या फिर हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर F7 प्रेस करने में ये ब्लू कलर की एक स्क्रीन आ जाती है. ये सारी की सारी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है दीज आर कॉल्ड बूट सीक्वेंस. और इन सारे बूट सीक्वेंस को कौन लुक आफ्टर कर रहा होता है? आपका बायोस कर रहा होता है. और बायोस बेसिकली कहाँ पे होता है? आपके रोम के अंदर सेव होता है. जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको रीड कर रहा होता है? वो रोम को रीड कर रहा होता है. एंड रोम में और कौन सी इन्फॉर्मेशन? बेसिकली इसके अंदर तमाम भी ड्राइवर्स हैं वो जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऑल हार्डवेयर्स के इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं. ठीक है ना. अब ड्राइवर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हार्डवेयर विच gives the information about the functionality of a particular device is known as driver. और ये सारे ड्राइवर क्या बेसिकली कहाँ जाके स्टोर होते हैं? रोम के अंदर स्टोर होते हैं. और ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. सो रीड ओनली मेमोरी क्या हो गई? परमानेंट हो गई, नॉन वॉलेटाइल हो गई. और हमारे पास बूट सीक्वेंस में जो यूज़ होती है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी. नाउ व्हाट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव? Hard disk drive are probably still the most common method used to store data on a computer. Data is stored in a digital format on the magnetic surface of disk or platter as they are frequently called. The hard disk drive will have a number of platters which can spin at about 7,000 times a second. A number of read-write heads can access all of the surface in the disk drive. Normally, each platter will have two surfaces which can be used to store data. Those read-write heads can move very quickly. Typically, they can move from the center of a disk to the edge of the disk and back again 50 times a second. Data stored on the surface in sectors and track. A sector on a given track will contain a fixed number of bytes. Unfortunately, hard disk drives have very slow data access when compared to, for example, RAM. Applications required the read-write head to constantly seek for correct block of data. This means a large number of head movement. The effect of latency then become very significant. Latency is defined as the time it takes for a specific block of data on a data track to rotate around to the read-write head. User will sometimes notice the effect of latency when they see messages such as please wait or at its worst not responding. बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है. ठीक है, जैसे स्टोरेज मीडियम होते हैं इसी तरह हमारे पास हार्ड डिस्क इज़ द स्टोरेज मीडियम. पैसेज ऑफ टाइम जैसे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तरक्की करते चले गए हैं, अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि इसके बाद भी कोई एडवांसमेंट आनी चाहिए क्योंकि इसमें हमें लेटेंसी इशू आना शुरू हो चुके हैं. और मोस्टली इसके अंदर ये होता है कि जब हमें रीड और राइट हेड को हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है तो उसकी वजह से लेटेंसी आती है. इन द फर्दर लॉन्ग आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास इससे भी एडवांसमेंट किस चीज़ में आई है वो आगे जाके हम देखें. Solid state drives, latency is an issue in hard disk as described earlier. Solid state drives remove this issue considerably. They have no moving parts and all data is retrieved at the same rate. They don't rely on magnetic properties. The most common type of solid state storage device stores data by controlling the movement of electrons within NAND chip. The data is stored as zeros and 1 in millions. The tiny transistors within the chip, this effectively produce a non-volatile rewritable memory. However, a number of solid state drives sometimes use
electronically erasable programmable read-only memory technology. The main difference is the use of NOR chip rather than NAND chip. This makes them faster and operational, but devices using EEPROM are considerably more expensive than those that use NAND technology. EEPROM also allows data to be read or erased in a single byte at a time. Use of NAND only allows blocks of data to be read or erased. This makes EEPROM technology more useful in certain applications where data need to be accessed or erased in a bite size chunk. अभी तक जितनी भी उसने बात बताई है वो हमें बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो नैंड गेट है, हमारे पास दो तरह के एसएसडी आते हैं। एक वो जो नैंड गेट यूज़ करता है, ठीक है, और एक वो जो नॉर गेट यूज़ करता है। नैंड गेट वाले के अंदर और EEPROM वाले के अंदर अगर हम थोड़ा डिफरेंस करें तो उसके अंदर ये है कि जो हमारे पास नैंड गेट है वो बेसिकली ब्लॉक ऑफ डाटा जो है उसको रीड करता है और अरेज करता है। कंपैरेटिवली जो हमारे पास EEPROM है बेसिकली ये क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये आपके पास अरेज्ड इन सिंगल बाइट्स एट अ टाइम, ठीक है, ये सिंगल बाइट करता है। सो दैट्स वाई ये ज़्यादा आपके पास ज़्यादा बेहतर भी समझा जाता है, उससे उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और डेफिनेटली और उसके वो एक्सपेंसिव भी इसी वजह से ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली अगर हम नैंड और EEPROM का कंपैरिजन करें तो EEPROM इज़ बेटर देन नैंड। Okay जी, because of the cost implication, the majority of solid state drives use NAND technology. The two types are usually distinguished by the term flash use NAND and EEPROM use NOR. ठीक हो गया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो EEPROM है वो क्या यूज़ करते हैं, वो नॉर गेट यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास फ्लैश है वो मोस्टली नैंड गेट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी ये वाली हमारे पास अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग SSD रादर देन हार्ड डिस्क? द मेन बेनिफिट्स ऑफ SSD आर समराइज्ड। ठीक है, क्या है? सबसे पहले आपके पास दे आर मोर रिलायबल, ठीक है, दे आर कंसिडरेबली लाइटर। कौन? SSD। दे डोंट हैव टू गेट अप टू स्पीड बिफोर दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है, दे हैव अ लोअर पावर कंजम्पशन, ठीक है, दे रन मच क्लोजर देन HDD। These last 2 points again make them very suitable for the laptop computers। तो इसलिए अब जितने भी हमारे नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं आ रही है, SSD कार्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, दे आर वेरी थिन, डेटा एक्सेस इज़ कंसिडरेबली फास्टर देन हार्ड डिस्क। ओके जी, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑफलाइन स्टोरेज। तो ऑफलाइन स्टोरेज के अंदर आ जाता है हमारे पास CD आ जाता है, DVD आ जाता है, DVD रैम आ जाता है, ब्लू-रे डिस्क, USB फ्लैश मेमोरी स्टिक्स, SD XD कार्ड्स, सॉलिड स्टेट स्टोरेज सिस्टम, रिमूवेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह आ जाती हैं। अब ये टेबल बहुत प्रिसाइज है, यू हैव टू गो थ्रू विद दिस टेबल कि डिस्क टाइप होगी, उसके अंदर उसने लेज़र कलर बताया हुआ है, उसके अंदर वेव लेंथ बताई हुई है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि CD की वेव लेंथ कितनी है, 780 nm, और इसी तरह DVD की कितनी है, 650 nm, और ब्लू-रे की कितनी है, 405 nm। ओके, नाउ व्हाट इज़ द construction? Single, like if I'm talking about CDC, single 1.2 mm polycarbonated layer, DVD में 0.6 mm polycarbonated layers, और ब्लू-रे के अंदर सिंगल 1.1 mm polycarbonated layer। अब इसके अंदर से हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद करने वाली है, ट्रैक पिच, डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक। अब उसके अंदर आपके पास जो CD है उसमें 1.60 है, DVD में 0.74 है, और ब्लू-रे के अंदर 0.30 माइक्रोमीटर है।
Future optical media. In recent times, both the CD and DVD are shown sign of becoming absolute. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर अब हमारे पास जो फ्यूचर ऑप्टिक मीडिया कौन कौन सा है। बहरहाल इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर मैनी कंप्यूटर सिस्टम नाउ कम्स विद USB कनेक्टर्स, यानी ओनली एंड नो DVD और CD ड्राइव्स। द मेन मैथड बिटवीन डिवाइसेस has become the flash memory. Many people now store all their music in the फॉलोइंग वेज, लाइक सबसे पहले वो हार्ड डिस्क आ जाता है, उसके अंदर MP3 फॉर्मेट आ जाता है, कंप्यूटर टैबलेट आ जाता है, देयर मोबाइल फ़ोन्स आ जाता है, पोर्टेबल म्यूज़िक आपके सच एज iPad और यूजिंग द क्लाउड। व्हाट इज़ क्लाउड? इंटरनेट के ऊपर आप जो सेव करते हैं, क्लाउड टू स्टोर ऑल देयर फाइल्स एंड सो दे कैन एक्सेस देयर म्यूज़िक फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय streaming their music from the internet. So basically एक जनरल सी आउटलुक है कि आप किस तरह से फ्यूचर के अंदर ऑप्टिकल मीडिया, और ये बड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल से है कि अब हमारे पास सीडीज़ और डीवीडीज़ एब्सोल्यूट हो गए हैं, और उसके बाद हमारे पास नए फॉर्मेट्स जो आए हैं हमने उसको डिस्कस किया है इसमें। Another very important topic, how to estimate the size of a file. Estimating the size of a text file is relatively straightforward. In chapter 1 we introduce the idea of ASCII code. Each character from the keyboard has a value of 1 byte. Suppose we type in the following message. This is the text from the computer science textbook, and then save it under the file name simple underscore text underscore for underscore book. If we then looked at the properties of the file just saved, we would see, if we count the number of characters in the text typed in, we get the number 48. This exactly matches the file size shown in the screenshot in figure 6.15. So each character equals 1 byte. We can therefore use this to estimate the size of a text file. Obviously there are other code stored in with the file which make it real size slightly different, but we aren't concerned about that in this section of the book. ये हमारे पास फिगर 6.15 के अंदर वो आपको बता रहा है कि एक सिंपल जो नोट पैड की टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर जो एस्टिमेट किया है 48 बाइट्स, मींस 48 दैट वैल्यू शोज़ द साइज़ ऑफ द फाइल जस्ट स्टोर, कि उसके अंदर 48 करेक्टर्स हैं और 48 ही बाइट्स उसके अंदर उसने स्टोर की हुई है। Okay ji, thank you so much. This is going to be the end of our chapter 6. If you have any question about this chapter, you can email me. Thank you.